Hi guys, this is lecture number 6. In this lecture I am going to solve a problem. Here I am going to read the question. In an epicyclic gear train, an arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively. Here they have given a gear train in which arm carries two gears A and B, and here gear A is having 36 teeth and gear B is having 45 teeth respectively. Next, if the arm rotates at 150 rpm in anti-clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed, determine the speed of gear B. So here arm is rotating with a speed of 150 rpm in the anti-clockwise direction about the center of gear A which is fixed, and here which is gear A is fixed. Gear A is fixed means its speed is 0. Here again, once again I will read out the sentence here. If the arm rotates at 150 rpm in anti-clockwise direction about the center of the gear A which is fixed, determine the speed of gear B. Arm is rotating with a speed of 150 rpm in anti-clockwise direction about the center of the gear A, and here the gear A is fixed. Gear A is fixed means its speed is 0. If this is the condition, we have to find out the speed of gear B. Okay, and next they have continued the question. If the gear A, instead of being fixed, makes 300 rpm in the clockwise direction, what will be the speed of gear B? So here they have given one more condition. What is that condition means? If the gear A, instead of being fixed मतलब gear A fix के बदले में अगर gear A 300 rpm स्पीड से क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो gear B का स्पीड कितना होगा? ये सेंटेंस का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे और एक कंडीशन दिया हुआ है. यहाँ तक एक कंडीशन हुआ, वो कंडीशन यूज़ करके स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है. नेक्स्ट यहाँ से और एक कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन को कंसिडर करके गियर बी का स्पीड फाइंड आउट करना है. वो कंडीशन क्या है बोले तो पहले कंडीशन में गियर ए फिक्स था. अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? अगर गियर ए फिक्स के बजाय गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड, गियर ए फिक्स्ड के बजाय अगर वो 300 आरपीएम से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो गियर बी का स्पीड क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम में दो कंडीशन दी हुई. प्रॉब्लम तो एक ही है मगर कंडीशन दो है. दोनों अलग अलग कंडीशन है और दोनों अलग कंडीशन को हम स्पीड गियर बी का स्पीड फाइंड करना है. एक कंडीशन यूज़ कर पहला वाला कंडीशन यूज़ करके स्पीड ऑफ गियर बी फाइंड करना है और सेकेंड वाला कंडीशन यूज़ करके भी गियर बी का स्पीड फाइंड करना है. तो इसके लिए पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. उसके लिए और एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. इन एन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरीज टू गियर्स ए एंड बी having 36 and 45 teeth respectively. So here they have given the number of teeth of gear A and gear B. So TA is equal to 36. A के 36 teeth है, for that reason TA is equal to 36. B is having 45 teeth, so TV is equal to 45 teeth. Now, if the arm rotates at 150 rpm in the clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed, determine the speed of gear B. Here, up to this there is one up to this there is a one condition. So for that one condition I will take it as case 1. This is case 1. In the first case, speed is arm is rotating with a speed of 150 rpm in the anti-clockwise direction. For that, NC, since we have taken arm as arm C here, speed of arm C is taken as NC is equal to plus 150 rpm. Why it is plus 150 rpm means it is rotating in anti-clockwise direction. Here you can write anti-clockwise. Okay, for the first condition only,
if the arm rotates 150 rpm in the anti-clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed. So here they are telling that gear A is fixed. Gear A is fixed means its speed is 0. For that reason Na is equal to 0. So next, determine the speed of gear B. So if this is the condition, then what will be the speed of gear B? So this is one condition. In the next condition I will read out here. From this there is a second condition. If the gear A instead of being fixed makes 300 rpm in the clockwise direction, मतलब अगर gear A फिक्स के बदले में 300 rpm से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो gear B का स्पीड कितना है? तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन केस 2 करके डालता हूँ यहाँ पे. दिस इज केस 2, यहाँ लिखा हुआ है केस 2 करके. Na इज इक्वल टू, मतलब गेयर ए फिक्स के बदले में आपको 300 rpm लेना है. तो Na इज इक्वल टू minus 300 rpm. Why it is minus means this gear A is rotating in clockwise. Okay. Next, speed of arm will be same. NC is equal to 150 rpm. यही स्पीड आर्म का स्पीड तो सेम रहेगा, सिर्फ वो क्या बोले हैं यहाँ पे, गेयर ए फिक्स के बदले में 300 rpm से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उतना ही बोले, बाकी सब सेम रहेगा. तो यही कंडीशन है, तो गियर बी का स्पीड कितना होगा. सो हियर देयर आर टू कंडीशंस. ओके, फॉर फर्स्ट कंडीशन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ गियर बी. फॉर second case 2 also you have to find out the speed of gear B. So here to find out the speed of gear B for both the conditions, first of all we have to again prepare the tabular column as we prepared in the previous problems. So here while preparing this tabular column you should not consider this given data. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको टैबुलर कॉलम जब भी आप प्रिपेयर करते रहते हैं, कौन सा भी प्रॉब्लम लो, जब आप टैबुलर कॉलम प्रिपेयर करते हैं तो ये गिवन डेटा को कुछ भी कंसिडर नहीं करना चाहिए. मतलब इसको ये गिवन डेटा जो है नी, इसको कुछ, ये टैबुलर कॉलम को कुछ रिलेटेड ही नहीं है. हम ये टैबुलर कॉलम इक्वेशंस बनाने के लिए टैबुलर कॉलम बनाते हैं, बाद में हम ये गिवन डेटा को कंपेयर करते हैं. मगर जब टैबुलर कॉलम आप बनाते रहते हैं ना, तो ये गिवन डेटा को कुछ भी कंसिडर नहीं करना चाहिए. जब टैबुलर कॉलम बनाते जब ये गिवन डेटा को भूल जाओ. सो नाउ आई विल स्टार्ट टू प्रिपेयर द टैबुलर कॉलम. फर्स्ट वन इज स्टेप नंबर और सीरियल नंबर. नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट इन द थर्ड कॉलम रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स बोले तो यहाँ पे गियर ट्रेन में कितने पार्ट्स हैं, उतने पार्ट्स के कॉलम्स बनाना है, और वो कॉलम जो है ना वो पार्ट का स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने पार्ट्स हैं, 3. गियर ए 1, गियर 2, गियर बी 2, आर्म सी इज 3. 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 पार्ट्स है. तो रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको 3 सब कॉलम बनाना है, 3 सब कॉलम्स बनाना है. तो इन दी फर्स्ट सब कॉलम ऑलवेज यू हैव टू राइट द आर्म. ऑलवेज इन द फर्स्ट सब कॉलम यू हैव टू राइट द आर्म. तो यहाँ पे आर्म सी करके लिए सो है. सो फर्स्ट हम फॉर दैट रीजन आई हैव टेकन इट एज आर्म सी, एंड दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आर्म सी. इन द नेक्स्ट कॉलम, आफ्टर आर्म, इन द नेक्स्ट कॉलम you have to take the gear in such a way that based on the type of gears. यहाँ पे देखो सिर्फ आपको यहाँ पे गियर ट्रेन में एक्सटर्नल गियर्स है, तो आपको आर्म के बाद छोटा गियर कंसिडर करना है. सिर्फ गियर ट्रेन में सिर्फ एक्सटर्नल गियर्स है, मतलब इंटरनल गियर्स नहीं है, तो आर्म के बाद स्मॉलर गियर चूज़ करना है. तो यहाँ पे यहाँ पे देखो गियर ट्रेन में सिर्फ एक्सटर्नल गियर्स है, इंटरनल गियर नहीं है, तो आर्म के बाद मैं छोटा गियर लिखता हूँ. छोटा आपको कौन सा भी गियर लिख सकते हैं, मगर आप यहाँ पे आर्म के बाद अभी छोटा गियर लिखे हैं, तो मतलब ऐसे तुम लॉजिक यूज़ किए तो आपका टैबुलर कॉलम बनाना आसान होगा. जब गियर्स सिर्फ जब गियर ट्रेन में सिर्फ एक्सटर्नल गियर्स होंगे तो आर्म के बाद स्मॉलर गियर लिखना है. तो यहाँ पे ये गियर ट्रेन में सिर्फ एक्सटर्नल गियर्स है, इंटरनल गियर्स नहीं है, तो आर्म के बाद मैं छोटा गियर लिखता हूँ. इसमें छोटा गियर कौन सा है, छोटा गियर पहचानने के लिए आपको नंबर ऑफ़ टीथ देखना पड़ेगा. नंबर ऑफ़ टीथ किसके कम है,
गियर ए के कम है, तो आर्म के बाद गियर ए लिखो। नेक्स्ट आर्म के बाद गियर ए लिखने के बाद अभी देखो नेक्स्ट कॉलम कैसा लिखना है बोले तो गियर ए किसके साथ मैच हो रहा है उसको देखना है, वो गियर नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। गियर ए किसके साथ मैच हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो गियर ए गियर बी के साथ मैच हो रहा है, ये गियर बी जो है ना गियर ए के बाद यहाँ पे लिखना है। ओके ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको कंडीशंस लिखना है, तीनों कंडीशंस लिखना है। तो पहले प्रीवियस प्रॉब्लम से हम जैसे कंडीशंस लिखे वैसे ही कंडीशंस लिखना है। तो फर्स्ट कंडीशन आर्म इज़ फिक्स्ड, ये ऐसे ही कंडीशंस लिखना है। आर्म हमेशा आपको फिक्स करना है फर्स्ट कंडीशन में। एंड आर्म के बाद कौन सा गियर है ना उसको +1 रोटेशन मोशन देना है, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ आर सेम। यहाँ पे शॉर्ट में काउंटर क्लॉकवाइज को CCW करके लिखा हुआ है। ओके और एक बार बताता हूँ ये कंडीशन कैसे लिखना है। यहाँ पे आर्म जो है ना आर्म को आपको फिक्स बनाना है, आर्म इज़ फिक्स्ड। एंड आर्म के बाद जो गियर है ना उसको आप +1 रेवोल्यूशन देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और ये कंडीशन लिखते जब या ये टॉबलर कॉलम लिखते जब ये गिवन डेटा को कुछ भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। अभी क्या करना है, ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये कॉलम्स आपको फिल करना है। ओके तो ये कंडीशन के हिसाब से अभी मैं कॉलम्स फिल करते जाता हूँ। आर्म इज़ फिक्स्ड बोले तो ये आर्म का स्पीड क्या होगा, तो आर्म का स्पीड 0 होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉलम जो है नहीं स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉलम आर्म सी का रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम गियर ए का रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम गियर बी का रिप्रेजेंट करेगा। ये कंडीशन के हिसाब से स्पीड ऑफ गियर आर्म का स्पीड 0 होगा। नेक्स्ट गियर ए का स्पीड आप यहाँ पे कंडीशन में मेंशन किए हुआ है +1 गियर ए मेक्स +1 रेवोल्यूशन एंड काउंटर क्लॉकवाइज करके, यही +1 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अभी कंडीशन में एक हम यहाँ पे एक कॉलम्स जो फिल कर रहे हैं एक कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो ये कंडीशन के हिसाब से गियर ए का स्पीड +1 होगा। नेक्स्ट गियर बी का स्पीड लिखना है बोले तो यहाँ पे गियर बी के बारे में कंडीशन में कुछ बताया नहीं, और यहाँ पे गियर बी का स्पीड जो है नहीं आपको लिखना है तो स्पीड रेशियो फार्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं, मगर हर बार वैसे करने से हमारा टाइम कंज्यूम बहुत होगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्मॉल लॉजिक यूज़ करता हूँ, जैसे मैं पहले प्रॉब्लम में किया हूँ। यहाँ पे आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर बी का स्पीड लिख रहे हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा कि गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है। गियर बी देखो ए के साथ मैच हो रहा है, तो गियर ए के नंबर ऑफ टीथ जो है नी न्यूमरेटर में लिखना है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब ऊपर लिखना है। डिवाइडेड बाय आप कौन से गियर का स्पीड लिख रहे हैं, गियर बी का स्पीड लिख रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, इनटू अभी आप गियर बी का स्पीड लिख रहे हैं, गियर बी किसके साथ मैच हो रहा है, गियर बी ए के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड गियर बी ए के साथ मैच हो रहा है, तो गियर ए का मैग्नीट्यूड जो है ना ये होगा, गियर ए का मैग्नीट्यूड ए, मतलब साइन छोड़ के जो भी है वो मैग्नीट्यूड बोलते हैं। गियर ए का मैग्नीट्यूड है ना 1 है, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, तो ये होगा। अभी देखो ये माइनस साइन कैसे आया, ये माइनस साइन जो है ना यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं हम, गियर ए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है करके बोल रहे हैं। ये कंडीशन के हिसाब से गियर ए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है करके बोल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बोले तो गियर ए का डायरेक्शन गियर ए का साइन हो प्लस। ओके, अभी देखो गियर ए और गियर बी दोनों एक्सटर्नल मैश हो रहा है, मतलब दोनों गियर एक्सटर्नल गियर्स हैं, तो एक्सटर्नल मैशिंग हो रहा है। जब दो गियर्स एक्सटर्नल मैश हो रहे हैं तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। गियर ए ऐसे रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो गियर बी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो गियर बी अभी गियर ए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो गियर बी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो गियर बी क्लॉकवाइज में घूम रहा है बोले तो उसका साइन होगा माइनस, तो इसलिए ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट कंडीशन। आप फर्स्ट कंडीशन लिख दिए तो बाकी की कंडीशंस आप आराम से लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, अभी आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर ए मेक्स +x रेवोल्यूशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे +1 जहाँ पे लिए थे ना, तो उसके बदले में आपको +x लेना है बस। और उसी के हिसाब से यहाँ पे ऊपर वाले
ऊपर वाले कॉलम्स में है नहीं, जहाँ जहाँ भी 1 है वहाँ पे x को रिप्लेस कर दो, बस x को रिप्लेस कर दो। जहाँ पे 1 नहीं है तो जैसे वैसे लिख दो। यहाँ पे देखो 0 है, 0 ही होगा, तो +1 यहाँ पे, तो +x यहाँ पे लिखे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है देखो, -ta/tb है प्लस इंटू 1 है, तो -ta/tb इंटू x यहाँ लिखने के बदले में यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज ऐड +y मोशन टू ऑल एलिमेंट्स। +y मोशन जो है सभी एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, +y तो टोटल मोशन को क्या करना है आपको, यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करते जाना है, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड रोज। ओके, यहाँ पे देखो ये और ये ऐड करके यहाँ पे लिखना है 0 + y एंड दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ आर्म, सो इसलिए NC। ओके, नेक्स्ट जो है ना दिस प्लस दिस यहाँ पे लिखना है x + y एंड दिस विल रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ गियर A। नेक्स्ट दिस प्लस दिस, यहाँ पे देखो ये और ये ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दिस कॉलम विल रिप्रेजेंट द गियर B। अभी देखो, अभी क्या करना है आपको क्या हुआ, यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल गए, मतलब तीन इक्वेशंस जो है ना ये उसके स्पीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशंस यूज़ करके हमें स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करना है। अभी क्या करता हूँ मैं, ये इक्वेशंस जो है ना, ये टैबुलर कॉलम के इक्वेशन जो है ना, ये गिवन डेटा से मैं कंपेयर करके स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस यूज़ करता हूँ, अभी मैं ये कंडीशन यूज़ करता हूँ और गियर बी का स्पीड फाइंड करता हूँ। अभी मैं ये कंडीशन यूज़ करके गियर बी का स्पीड फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखो केस 1 है, गिवन में क्या दिया है, NC = 150 + 150 RPM है, +150 RPM है, ये गिवन में है। आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, गिवन में फर्स्ट कंडीशन के डेटा यूज़ कर रहा हूँ मैं, NC = +150 RPM, यहाँ पे वही लिखा हूँ मैं, गिवन दैट NC = +150 RPM फ्रॉम टैबुलर कॉलम, फ्रॉम टेबल और फ्रॉम टैबुलर कॉलम NC = +y। ये NC = y जो है ना, यहाँ पे टैबुलर कॉलम से मिला है आपको, यहाँ पे देखो टैबुलर कॉलम से। ओके, अभी देखो इसको मैं इक्वेशन 1 करके लेता हूँ, इक्वेशन इसको 2 करके लेता हूँ। अभी यहाँ पे दोनों इक्वेशन के LHS सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो इफ LHS आर सेम देन दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ओके, y आपको y = 150 मिल गया। नेक्स्ट, गिवन दैट फर्स्ट केस में गिवन दैट NA = 0। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में NA = 0 है, ठीक है, बट फ्रॉम टैबुलर कॉलम में NA = क्या है, x + y, वही लिखा हूँ मैं। गिवन दैट NA = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम टेबल और फ्रॉम टैबुलर कॉलम NA = x + y, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे भी देखो LHS आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम है, तो इसको आई कैन इक्वेट दिस इज इक्वल टू दिस, सो x + y = 0 करके कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे वही लिखे हुए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 0 = x + y। तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मालूम है, यहाँ पे आपको y का वैल्यू मालूम है, ये y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, 0 = x + y के बदले में 150 सब्स्टिट्यूट किया, तो x = क्या होगा, x = -150 होगा, मतलब -150 इधर लेके आया तो 150 होगा, सो x = -150 आपको मिल गया, तो ये x का वैल्यू होगा। अभी क्या करता हूँ मैं, हमको स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करना है। स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करने के लिए मैं टैबुलर कॉलम का इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यानी b = -x ta/tb + y। ये जो इक्वेशन जो है ना टैबुलर कॉलम से मिला हुआ हमको, यहाँ पे है देखो ये इक्वेशन जो है ना टैबुलर कॉलम से मिला हुआ है, ये इक्वेशन यूज़ करके स्पीड ऑफ गियर भी फाइंड करता हूँ मैं। ये जो
टैबुलर कॉलम से हमको इक्वेशन मिला है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस एक्स है, तो माइनस ये हुआ, एक्स का वैल्यू क्या है -150 है, तो ब्रैकेट में -150, ओके, इनटू टी ए इज़ 36, टी ए इज इक्वल टू 36 है, यहाँ पे लिखे हुए गिवन में टी ए इज इक्वल टू 36 और टी बी इज इक्वल टू 45, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हूँ मैं, टी ए 36, टी बी 45 प्लस यहाँ पे y है, तो y का वैल्यू यहाँ पे मालूम है हमको 150 है, प्लस 150 है, तो प्लस 150 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो टोटल सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एन बी इज इक्वल टू कितना हुआ 270 RPM हुआ। सो एन बी इज इक्वल टू आपको 270 RPM मिल गया। सो दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ गियर बी, एंड सिंस यू गॉट दिस वैल्यू एज पॉजिटिव, आपको प्लस 270 आ रहा है, तो ये मॉड्यूल में हम बता चुके हैं, प्लस को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, तो ये गियर जो है नी, गियर बी जो है नी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ओके। सो नेक्स्ट केस, अभी क्या करना है, सेम टैबुलर कॉलम के इक्वेशंस लेके अभी सेकेंड केस के कंडीशंस को यूज करके गियर बी का स्पीड फाइंड करना है, ओके। तो नाउ आई विल यूज द कंडीशंस ऑफ केस 2। केस 2 में क्या है, यहाँ पे देखो एन ए इज इक्वल टू -300 RPM, केस 2 गिवन दैट NC is equal to 150 RPM, NC is equal to 150 RPM। तो गिवन में यहाँ पे केस 2 में गिवन में NC is equal to 150 RPM है, तो यही यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैं 150 RPM, ओके। बट फ्रॉम द टैबुलर कॉलम NC is equal to y, वही यही टैबुलर कॉलम यूज़ करना है। सो इसमें ये टैबुलर कॉलम से NC is equal to y है, तो NC is equal to y यहाँ पे लिखा हूँ, NC is equal to फ्रॉम टेबल करके लिखा हुआ है, टेबल और टैबुलर कॉलम बोथ आर सेम, फ्रॉम टेबल NC इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन 5 करके लिया हूँ, ये इक्वेशन 6 करके लिया हूँ। यहाँ पे देखो LHS सेम है, तो आई कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, सो देन वी विल गेट y इज इक्वल टू 150। अगर LHS आर सेम है तो RHS भी इक्वल रहते हैं करके हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 150 करके इक्वेट किए, ओके। नेक्स्ट गिवन दैट NA इज इक्वल टू -300 RPM, यहाँ पे देखो गिवन में NA इज इक्वल टू -300 RPM है, ओके। गिवन दैट NA इज इक्वल टू -300 RPM फ्रॉम टेबल और फ्रॉम टैबुलर कॉलम NA इज इक्वल टू x प्लस वाई। टैबुलर कॉलम से हमको NA इज इक्वल टू क्या मिला, x प्लस वाई है, तो ये वाला हम यूज़ कर, ये वाला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, NA इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अभी देखो LHS आर सेम, तो देन दिस इज इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन 7 करके लिए, इक्वेशन 8 करके लिए, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर किए तो -300 इज इक्वल टू x प्लस वाई, -300 इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ पे -300 एज इट इज़ इक्वल टू x, बट यहाँ पे देखो y का वैल्यू 150 है, तो 150 यहाँ पे y के बदले में 150 को सब्स्टिट्यूट किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद x इक्वल टू -450 आएगा, ओके। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। Now you can easily find out the speed of gear B by using the equation from the tabular column। ये वाला इक्वेशन यूज़ करके गियर बी का स्पीड फाइंड करते हैं। ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो कॉलम जो है नी वो गियर्स के रिस्पेक्टिव गियर्स के स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये इक्वेशन यूज़ करके गियर बी का स्पीड फाइंड करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एन बी इज इक्वल टू -x टी ए बाई टी बी, एक्चुअली टी ए बाई टी बी है, एन बी इज इक्वल टू -x टी ए बाई टी बी प्लस वाई, ओके। सो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ना टैबुलर कॉलम से मिला हुआ है, तो अब यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एज इट इज़ x का वैल्यू यहाँ पे कितना है -450 है, तो -450 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, -450, ओके। टी ए का वैल्यू हमको मालूम है, गिवन में दिया हुआ है, टी ए और टी बी का वैल्यू, टी ए 36 है, टी बी 45 है, ओके। टी ए 36 और टी बी का वैल्यू 45 प्लस 150 एज इट इज़
ओके, यानी बी इज इक्वल टू आप सिंप्लीफाई करने के बाद 510 RPM मिल जाएगा आपको यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में मिल रहा है बोले तो ये वाला भी एंटी क्लॉक गियर भी है, गियर भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है अगर एक सेकेंड कंडीशन के हिसाब से, सेकेंड केस के हिसाब से. सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. थैंक यू.